ओके बच्चों, लेक्चर के दूसरे हाफ में आपका स्वागत है। फर्स्ट दो लैंड एडेप्टिव फीचर्स डिस्कस हो चुका है बच्चों। एक था हमारे पास राइजोइड्स, सिमिलर स्ट्रक्चर्स टू रूट्स प्रेजेंट इन हायर मेंबर्स, higher terrestrial plants, and second was some waxy substance which is considered equivalent to cuticle present in other plant groups, for example in pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So here we are going to discuss the third point, that is a presence of multicellular reproductive structures. मल्टीसेल्यूलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का होना भी एक एडेप्टिव फीचर है एज कंपेयर टू यूनिसेल्यूलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये प्रश्न फिर आप लोगों से पूछता हूं, जब डेसिकेशन की बात आएगी, ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर जल्दी डेसिकेट होंगे या मल्टीसेल्यूलर? तो जवाब होगा यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जल्दी डेसिकेट होंगे, क्योंकि मल्टीसेल्यूलरिज्म हल्का सा डेसिकेशन से भी बचाता है। मोर ओवर इन अ ब्रायोफिटिक group of plants, these reproductive structures, male and female reproductive structures, are enclosed inside a sterile jacket, and this sterile jacket it provides additional protection, because in aquatic plants they do not fear desiccation. So the reproductive structures are without this jacketed structure or without a sterile jacket, but bryophytes have adopted this sterile jacket on reproductive structures as a measure to adapt according to land habit, where plants have to protect themselves and their parts from desiccating effect of environment. In bryophytes, sexual reproductive structures called antheridia and archegonia are multicellular and enclosed inside a sterile jacket to protect themselves from desiccating effect of environment. तो ये भी एक और तीसरे नंबर का हमारे पास लैंड एडेप्टेशन आ गया, लैंड एडेप्टिव फीचर आ गया जो ब्रायोफाइट्स के पास है। उसके बाद आएगा बच्चों ये थिक वॉल्ड सेल्स। टिश्यूज है ना, डिफरेंट टाइप्स है ना, +1-2 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पेरेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इनका डिटेल में मेरे को जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, out of the three, these two type of tissues or cells, these are thick walled, and in prosenkymatous type the thickness is more at corners, सेल के कॉर्नर्स पे सेल वाल के, है ना, जैसे ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, इनके कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा थिकनिंग होता है, इनका एक्स्ट्रा थिकनिंग होता है ना। So such structures are called prosenkymatous structures or prosenkymatous cells or prosenkymatous tissue, or these are present in many members of bryophytes. And what is the function of prosenchyma? Prosenkymatous cells are thick-walled cells and elongated cells having narrow lumen. Why narrow lumen? Because of thick cell wall. ठीक है, narrow lumen, and they are supposed to function for providing mechanical strength, as well as they are thought to conduct water and mineral. So such structures are present in many bryophytes, and this is again a land adaptive feature. What you will see in aquatic plants, that thick walled tissue is rarely present. थिक वॉल्ड सेल्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। ये एक एक्वेटिक एडेप्टेशन है। जब पानी के अंदर कोई पौधा रहता है
एक छोटा सा एक पौधा ड्रा कर लेता हूं मैं। पौधा पानी के अंदर रहता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। उस सूरत में इसको ना तो वाटर सरफेस से ऊपर आना है, मींस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है, ठीक है। और जो सबमर्ज्ड प्लांट्स है उनको भी ग्रेविटी के अगेंस्ट ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वाटर उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उस केस में वो टिश्यू जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, फॉर एग्जांपल द वस्कुलर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, they are not there or very feebly developed, and say prosenchymatous cells which provide mechanical strength to plant body are very less present in aquatic plants. एक और बात भी बता देता हूं, जो एक्वेटिक प्लांट्स है ये लगातार पानी के थपेड़े सहते रहते हैं, वाटर करंट्स, चाहे वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो चाहे मेराइन इकोसिस्टम हो, ठीक है। वाटर करंट्स के साथ ये इधर उधर हिलोरे खाते रहते हैं। उस सूरत में अगर कहीं पर हमारे पास थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिजिड होते हैं, तो उस सूरत में ये प्लांट बॉडी ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनकी एक मजबूरी भी रहती है कि दे शुड हैव अ बॉडी विच शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल, ताकि ये पानी के करंट्स के साथ कहीं टूट ना जाए। इसीलिए एक्वेटिक प्लांट्स में जो थिक सेल वॉल्ड टिश्यू बहुत कम मौजूद रहता है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट में इसकी जरूरत रहती है, ठीक है। एक तो कंडक्शन के लिए, दूसरा आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट बॉडीज है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज विच ग्रो अप टू हंड्रेड्स ऑफ फीट, ठीक है। हाउ दे कैन ग्रो टू हंड्रेड्स ऑफ फीट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड वर्टिकली अपराइट? एक तो ये जड़ों के साथ एंकर्ड होंगे, दूसरा इनके पास मैकेनिकल टिश्यू होगा। और जो ये स्क्लेरेनकाइमा और प्रोजेनकाइमा है, ये मैकेनिकल टिश्यू भी बोल सकते हैं इनको कंडक्शन टिश्यू भी बोल सकते हैं। सो सच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन मेनी ब्रायोफिटिक मेंबर्स। यह हमें पढ़ के सुना देता हूं। प्रेजेंस ऑफ प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू इज येट अनदर टेरेस्ट्रियल फीचर पोजेस्ड बाय मेनी मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा, है ना। फॉर एग्जांपल स्फेग्नम इज देयर, पॉलीट्राइकम इज देयर। जो प्रोस्ट्रेटली ग्रोइंग लीफी एक्सिस है उनमें थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कहीं नहीं है बच्चों, ठीक है। ये मैं जानकारी दे देता हूं। प्लस जो हेपेटिक गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज है या थैलोइड प्लांट बॉडीज है, वहां पर भी ये प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू बिल्कुल नहीं है। ये है ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स में, फॉर एग्जांपल स्फेग्नम, फॉर एग्जांपल पॉलीट्राइकम। आगे मैं एक इमेज दिखाऊंगा जो कि ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेन एक्सिस ऑफ स्फेग्नम, टीएस ऑफ स्फेग्नम मेन एक्सिस। जब इसका ट्रांसफर सेक्शन निकालते हैं, 3 अलग अलग जोन्स दिखते हैं, कॉर्टिकल रीजन, हेड्रोम रीजन एंड सेंट्रली लोकेटेड मेडुलर रीजन। जो मिडल वाला लेयर है जिसको मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, विच कंस्टिट्यूट हेड्रोम पोर्शन, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोजेनकाइमेटस सेल्स। ये आपको डायग्राम बनाने का जरूरत कुछ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एग्जांपल याद रखने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए ये इमेज मैंने दिखाया है कि प्रोजेनकाइमा हमें कहां कहां नजर आ सकते हैं, ये याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक स्फेग्नम हो गया। दूसरा हमारे पास टीएस ऑफ राइजोम ऑफ पॉलीट्राइकम स्पीशीज है कोई, ठीक है। इसमें भी 2 अलग अलग तरह के प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू नजर आ रहे हैं। एक तो ये हाइपोडर्मल है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मल रेडियल स्ट्रैंड्स, रेडियली ग्रोइंग, ये हाइपोडर्मल स्ट्रैंड्स, प्लस some other tissue structures interspersed between hydroids and these are called steroids। जो ये पिंक कलर से किया हुआ है, these are steroids। no need to go for the detail, but these are the thick walled structure present in the central portion of a polytrichum rhizome as well as in polytrichum main axis also। polytrichum के main axis में भी प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू नजर आता है। ये भी प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू है, जो स्टीरिड्स है ये भी प्रोजेनकाइमेटस टिश्यू है, और ये कहा जाता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं,
प्लस अगर ये सेंट्रली लोकेटेड है तो ये कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. सो आई थिंक विद दिस आवर लेक्चर फिनिशेस. तो ये 5-6 पॉइंट है बच्चों, जो इसका क्वेश्चन आएगा ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 3-4-5 नंबर का तक का प्रश्न आ सकता है. ठीक है, हाँ, लेकिन एक एक नंबर के कई प्रश्न निकल सकते हैं बच्चों इसमें से. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों. तो कल मिलते हैं. कल हम टर्डोफाइट शुरू करेंगे. ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों, तब तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए.